Students, we have some questions in mind. Why hemophilia is called as royal disease? तो हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज क्यों बोला जाता है? Because it affected the royal families of England, Germany, Russia and Spain in the 19th and 20th century. 19वीं और 20वीं शताब्दी में ये बीमारी जो थी वो रॉयल फैमिलीज़ में हुई थी. इंग्लैंड की, जर्मनी, रशिया और स्पेन की रॉयल फैमिलीज़ में ये बीमारी हुई थी. क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड, who ruled from 1837 to 1901, is believed to have been carrier of this disease. That is, उस फीमेल में जो कि क्वीन विक्टोरिया थी उसमें हीमोफीलिया बी नामक बीमारी थी जो कि फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होती है. एंड वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि वाई इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स. और थर्ड क्वेश्चन दैट इज़ why it is called as bleeder disease. So we will have all the answers of all the questions in our topic. So let us start. So today we will discuss about hemophilia in detail. Hemophilia is made up of two Greek words, that is hema, H-A-I-M-A. Hema means blood, and philia, you know very well, it is mean love, means hemophilia means love for blood. Hemophilia is a mostly inherited genetic disorder. It is, what is hemophilia? It is inherited genetic disorder. Inherited genetic disorder means, inherited means it is transferred from parents to offsprings. और करता क्या है? That impairs bodies to clot blood. That impairs bodies to clot blood. मतलब कहने का मतलब है कि हीमोफीलिया जो है वो इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है. वो करता क्या है? इससे बॉडी का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है. ब्लड क्लॉट क्या है? प्रोसेस नीड्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग. ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? इट इज ए प्रोसेस नीड्स टू स्टॉप ब्लीडिंग. ब्लीडिंग को स्टॉप करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग. It is a genetic disorder that you know very well. Hemophilia is also known as bleeder disease. Hemophilia का दूसरा नाम है that is bleeder's disease. Bleeder's disease. Hemophilia is also known as bleeder disease. Means in this disorder there is excessive bleeding. इवन आफ्टर स्मॉल कट और इंजरी, छोटा सा कट लगता है, इंजरी होती है, उससे क्या हो जाएगी? एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी. एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग से क्या हो सकता है? डेथ विल बी देयर. सो वी कैन सी दैट हेमोफीलिया इज ए इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर which ultimately lead to excessive bleeding and which leads to death. It is a sex-linked recessive disorder. Very important. ये क्या है? हेमोफीलिया इज ए sex-linked. Hemophilia is sex-linked recessive disorder. You know very well, in our body there are 23 pairs of chromosome. There are 23 pairs of chromosome, out of which 22 pairs are autosomes. 22 pairs are autosomes, and one pair is sex chromosome. तो टोटल कितने हैं? 23 pairs. Out of this 22 pairs are of autosomes and one pair is of sex chromosome. तो sex chromosome हमारे क्या? फीमेल में that will be XX in female and XY that will be in male. So you can see that there are 23 pairs of chromosome, and out of 23 pairs of chromosome, 22 pairs are autosomes and one pair is of sex chromosome. So hemophilia is a sex linked recessive disorder. means ये एक्सप्रेस
रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव क्या होता है? रिसेसिव इज दैट डिसऑर्डर विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। रिसेसिव जीन वो जीन होता है जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। इट इज कॉज ड्यू टू, इसका कॉज क्या है? अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग में जो रिस्पॉन्सिबल, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एक प्रोटीन, तो ये मतलब कॉज क्या है? हीमोफीलिया का कॉज क्या है? कॉज ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज इज इट इज ड्यू टू डिसऑर्डर इन सम प्रोटीन, ड्यू टू डिसऑर्डर इन सम प्रोटीन फॉर्मेशन। बॉडी का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होगा कि कुछ प्रोटीन जो है वो फॉर्म नहीं हो पाएंगी बॉडी के अंदर। सो ये दिस इज ए प्रोटीन का जो डिसऑर्डर है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, यू नो वेरी वेल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन which help in the cascade or chain formation, because there are different types of protein that forms cascade or chain for blood clotting. Cascade or chain for ब्लड क्लॉटिंग मींस ब्लड क्लॉटिंग जो है वो किसकी हेल्प से होगी? प्रोटीन्स की हेल्प से होगी। और प्रोटीन्स कहां बनेगी? बॉडी के अंदर बनेगी। ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग मैनी प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, यू नो वेरी वेल। एंड इफ देयर इज malfunctioning ऑफ सिंगल प्रोटीन, एंड इफ देयर इज malfunctioning of single protein, if there is malfunctioning of single protein, blood clotting will not take place. Blood clotting will not take place, and person will be hemophilic. अब जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो वो पर्सन कैसा हो जाएगा? हीमोफिलिक हो जाएगा, और उसकी जो डेथ हो सकती है किससे? एक्सेसिव ब्लीडिंग से डेथ हो सकती है। हीमोफिलिया जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोफिलिया। हीमोफिलिया इज ऑफ टू टाइप। Hemophilia is of two types, hemophilia A and hemophilia B. Hemophilia A and hemophilia B. You know very well A and B are the factors. अब hemophilia A जो है that takes place to the deficiency of factor 8. ये कैसे होगा? फैक्टर 8 रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। फैक्टर 8, what is this factor 8? Hemophilia A will be due to the deficiency of factor 8 in the blood or low amount of factor 8 in the blood. अब factor 8 क्या है? It is AHF. Factor 8 is AHF. Factor 8 जो है उसको हम AHF बोल सकते हैं। What is this AHF? AH is anti-hemophilic factor. AHF is anti-hemophilic factor. Hemophilic फैक्टर। मतलब कहने का मतलब ये आ गया कि हमारी बॉडी के अंदर अगर फैक्टर ए की डेफिशिएंसी है, फैक्टर ए इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन, और फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज AHF, दैट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। हमारी बॉडी के अंदर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर का अमाउंट कम है, लो अमाउंट है, या इस AHF की डेफिशिएंसी है, तो भी हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर पाएगा। और दिस टाइप ऑफ हीमोफिलिया इज कॉल्ड एज हीमोफिलिया A। और हीमोफिलिया B दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। ये हीमोफिलिया जो है B दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। 9th फैक्टर की डेफिशिएंसी, 9th फैक्टर जो है उसकी डेफिशिएंसी से हीमोफिलिया B होगा। और 9th फैक्टर हमारी बॉडी को दैट इज क्रिस्मोस फैक्टर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिस्मोस, CHRISTMOS, क्रिस्मोस फैक्टर। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर क्रिस्मोस फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो भी जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। और ये फैक्टर जो है 20 फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 11 और भी फैक्टर है। फैक्टर जैसे हीमोफिलिया C भी है, लेकिन हीमोफिलिया C जो है वो मेरे दोनों में हो सकता है, उसके लिए फैक्टर 11 रिस्पॉन्सिबल है। तो वैसे ही वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स। तो फैक्टर 8 and 9 are responsible for hemophilia A and B.
अगर हम बात करें उसके बाद इनहेरिटेंस पैटर्न्स की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि हीमोफीलिया इज अ वेरी कॉमन डिजीज इन मेल्स, बट इट डज नॉट टेक प्लेस इन फीमेल। फीमेल्स में हीमोफीलिया नहीं होता है, मेल्स में हीमोफीलिया हो सकता है। फीमेल इज आल्सो कैरियर ऑफ द डिजीज। अब कैरियर का मतलब क्या है? अगर मैं मान लूं कि ये जीनोटाइप है XXH, means it is not expressed in recessive condition. This is a recessive disorder, small h है, तो ये कैसा है? सेक्स लिंक्ड recessive disorder है, और it is not expressed when this X is present and it is XY, means अगर हम इसकी इनहेरिटेंस की बात करें तो क्वेश्चन यहां सीधा बनता है कि कैरियर फीमेल इज मैरिड विद नॉर्मल मेल। अगर कैरियर फीमेल की मैरिज जो है नॉर्मल मेल से हो जाती है, देन व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स में कितने मेल्स आएंगे, कौन से हीमोफिलिक होंगे? तो यहां पे फिर आपको पता है वही चलेगा मियोसिस, और मियोसिस से क्या बनेंगे? गैमीट्स बन जाएंगे। दिस इज X एंड दिस इज XH, दिस H इज recessive factor which is present on this X, and here also meiosis, and this is gamete, this is Y, gametes are formed. And what will be the possible combination in the progeny? That is F1 generation. Possible combination in F1 generation, what will be? That is X and X. This is a normal female. X and Y. This is normal male. XXH. This will be the carrier female. And XHY, this will be hemophilic male. अब यहां मैं बात कर दूं तो दिस इज नॉर्मल फीमेल, और ये क्या है? नॉर्मल मेल। ये है कैरियर फीमेल, और ये क्या है? हीमोफिलिक मेल। और यहां एक बात बता दूं कि हीमोफिलिक मेल जो है दैट रेयरली सर्वाइव्स, हीमोफिलिक मेल जो है रेयरली सर्वाइव एट द एज ऑफ अप टू द एज ऑफ मैरिज, क्योंकि आपको पता है कि हीमोफिलिया जो है दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर। और इसमें क्या है कि अगर एक स्मॉल कट भी लग जाता है बॉडी के ऊपर, छोटा सा घाव हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है, तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। किससे? एक्सेसिव ब्लीडिंग से। तो इट विल रेयरली अटेन the age of marriage, it will rarely will be able to reach up to the marriageable age. ठीक है? तो फीमेल जो है that will be always the carrier of the disease. फीमेल जो हीमोफिलिक नहीं हो सकती, it is very rare. फीमेल हीमोफिलिक कब होगी? फीमेल हीमोफिलिक कब होगी? when marriage of this hemophilic male will take place with the carrier female. जब हीमोफिलिक मेल की मैरिज जो कैरियर फीमेल से होगी। अब ये हम देखते हैं कि कैरियर मतलब हीमोफिलिक फीमेल कब होगी। यहाँ से क्वेश्चन कुछ एक बनते हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कैरियर फीमेल है XXH, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ कैरियर फीमेल, एंड दिस इज हीमोफिलिक मेल। अगर इनकी आपस में मैरिज हो जाती है मैरिज, देन व्हाट विल बी द पॉसिबल जीनोटाइप? पॉसिबल गैमेट्स आर देयर, दिस इज X एंड दिस इज XH, this is XH, and this is Y, and F1 generation we can get here X, XH. Next we can get here X, Y. Here we can get X, H, X, H, and here we can get X, H, Y. It is hemophilic female, and this is hemophilic male. So this is hemophilic female is very rare. Hemophilic female जो that is very much rare. Hemophilic female जो बड़ी rare है, क्योंकि this male is not able to reach the marriageable age तक ये मेल नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए हीमोफिलिक फीमेल इज वेरी रेयर. There the pattern of inheritance, if we see the pattern of inheritance,
That is crisscross type of inheritance. Means we have normal female. This normal female, and this normal female is married with hemophilic male. This is hemophilic male. Although it is very rare, but फिर भी मान लेते हैं normal female married with hemophilic male. Then what will be the meiosis? And what gametes are formed? This X gamete and another this X gamete. This is XH and this is Y. These gametes are formed, and individual we will get in F1 generation. What we will get? This is XXH. And next this will be XY. This will be XXH. And this will be XY. Means in F1 generation we will not able to get this combination. हम F1 जनरेशन में हमें ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा. कौन सा? पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा. पेरेंटल में मतलब मेल वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा. पेरेंटल कॉम्बिनेशन मींस मेल कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलेगा. चाहे फीमेल की बात करें तो फीमेल कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे नहीं मिलेगा. क्या बोला यहाँ पे? दिस इज कैरियर फीमेल. ये क्या है? कैरियर फीमेल. ये है नॉर्मल मेल. ये है कैरियर फीमेल और ये क्या है? नॉर्मल मेल. अब इसका F2 जनरेशन अगर हम देखें अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के लिए तो क्या है यहाँ पे कि सेल्फिंग ऑफ दिस कैरियर फीमेल विद नॉर्मल मेल. अब यहां दूसरे केस में क्या हो गया? मेल नॉर्मल हो गया और फीमेल कैसी है? कैरियर. देन व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन? meiosis will take place. Gametes formed like this and gametes are just like this. तो यहां जो कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? XX, that is normal female. Then will be XY, that's normal male. XXH, this is carrier female, and XHY, this is hemophilic male. ये है कैरियर फीमेल, ये नॉर्मल मेल, ये नॉर्मल फीमेल और ये क्या है? हीमोफिलिक मेल. तो व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन. दिस इज ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर हो गया और ये क्या है इसका? ग्रैंडसन. ग्रैंडसन. अब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन बाया किसके? बाया. बाया इसका कैरेक्टर XX कहां चला गया? डॉटर में चला गया. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन. ग्रैंडसन किसके द्वारा? बाया हिज डॉटर. बाया डॉटर. दैट इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. मीन XX यहां पर कहां से आया? डॉटर के थ्रू आया. मीन व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन बाय हिज डॉटर. मतलब यहां का कैरेक्टर ग्रैंडफादर और यहां डॉटर आ गई. ग्रैंडफादर, ये डॉटर आ गई. दिस इज फादर, ये डॉटर है इसकी और इसका इसके जो है ये ग्रैंड फादर है. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन बाय हिज डॉटर. दैट इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको समझ आ गई. अब हमें पता करना चाहिए कि हीमोफीलिया अगर किसी को होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द मतलब उसको कैसे प्रोसीजर को कैसे उसकी बात करनी चाहिए? तो इसके लिए क्या है? जेनेटिक टेस्टिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग इज रिकमेंडेड. पहला बात है कि जेनेटिक टेस्टिंग. हीमोफीलिया किसी को होता है तो उसकी क्या होनी चाहिए? जेनेटिक टेस्टिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग. जो दैट इज रिकमेंडेड.
genetic testing and genetic counseling is recommended. Although it is a genetic disorder, दूसरी बात हम कह सकते हैं कि ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, but it may also be acquired simultaneously, spontaneously. Although it is a, although ये नंबर पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, although it is a sex linked recessive genetic disorder, but it can also be acquired. What it can also be acquired? कैसे? Spontaneously. Spontaneously कैसे होगा? Through mutation. Through mutation. What is mutation? Sudden, stable, inheritable changes in the genetic set of a chromosome, that is called as mutation. तो spontaneous mutation की अगर बात करें तो spontaneous mutation accounts about 33% for hemophilia A. मतलब 33% जो केसेस होंगे हीमोफीलिया ए के वो किससे होंगे? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से होंगे, एंड 30% फॉर हीमोफीलिया बी. So this is about hemophilia. I think you are very much clear about the concept. What is hemophilia? It is also called as bleeder disease, and person may die with the excessive bleeding. और इसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि कैरियर फीमेल इज मैरिड विद नॉर्मल मेल, या hemophilic male is married with a female. तो इस तरह के क्वेश्चन यू कैन डू इट इजीली.